Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. Children, this is chapter 2, diversity in the living world, and we are going to do part 11 of this chapter. If you want to know about the previous parts of the chapter and the chapter number 1 of your book, then please go and subscribe EduVibe, the vibe of smart education. Now, children, the population of the Bengal tiger, cheetah and great Indian bustard has declined in India. इनकी पॉपुलेशन भारत में बहुत कम हो गई है, नीचे गिर गई है ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, क्योंकि इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनका खात्मा हो गया है, caused by human activities, right? So the government of India has initiated, अब भारत सरकार ने इनिशिएट लिया है several projects के थ्रू to conserve our biodiversity. Project Tiger was initiated, ये शुरू किया गया था in 1973 to protect the declining population of the Bengal tiger. बंगाल टाइगर की घटती जनसंख्या को बचाने के लिए The Cheetah Reintroduction Project was initiated, ये शुरू किया गया था in 2022 to restore the population of the cheetah. Similarly, habitats of the great Indian bustard have been declared as protected areas in the states of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. इसी तरह ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी डिक्लेयर किया गया था प्रोटेक्ट करने का इन स्टेट्स में, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज द समरी. दीज आर सम की पॉइंट्स जो अब तक हम पढ़ चुके हैं. सो लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम. We are surrounded, हम घिरे हुए हैं by a large variety of plants and animals. बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास प्लांट्स की, एनिमल्स की, right? Such variety of plants and animals is a part of diversity. यही जो वैरायटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, right? Plants and animals can be grouped, ये ग्रुप किए जा सकते हैं on the basis of similarities, similarities के बेसिस पर, and differences among them, और इनमें जो differences हैं उसके बेसिस पर. Plants have similarities and differences based on features associated. कौन से features होते हैं जिनके बेसिस पर हम उनकी similarities और differences को देखते हैं? With roots, stems, leaves, flowers and so on. The method of arranging things, चीजों को अरेंज करने का मेथड into groups based on their common feature is called grouping. इसे हम कहते हैं grouping. Plants can be grouped into herbs, herbs में shrubs and trees based on their height, इनके height के basis पर, types of stem and branching pattern पर. Plants can also be grouped as dicotyledons, dicots and monocotyledons, monocots based on the number of cotyledons in their seed. इनके बीज में जितने cotyledons होते हैं उसके बेसिस पर ये या तो dicotyledons होते हैं या फिर monocotyledons होते हैं. Now, monocots generally exhibit parallel venation. Monocots में generally parallel venation होती है in their leaves and possess fibrous roots, while dicots जो होते हैं typically exhibit reticulate venation in their leaves and possess taproots. Animals have different type of movement, इनमें different type of movement होती है that can be a basis for their grouping. Biodiversity of different region varies because of distinct environmental condition. डिफरेंट रीजन की जो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उसी हिसाब से ये एनिमल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. द स्पेशल फीचर, जो एक स्पेशल फीचर होता है दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन, जो कि एनिमल और प्लांट्स को एक पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं बच्चों अडैप्टेशंस. द प्लेस, वो जगह वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, वो क्या कहलाती है? हैबिटेट.
Based on their habitats, इनके habitats के बेस पर animals and plants can be grouped as terrestrial and aquatic. या तो वो terrestrial होते हैं, वो land पर रहते हैं, या फिर वो water में रहते हैं तो वो aquatic होते हैं. Due to damage of their habitats, इनके habitats के damage के कारण plants and animals lost their home. ये अपने घरों को खो देते हैं. Food and other resources resulting in the loss of biodiversity. जिससे प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि बायोडाइवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी. वी मस्ट प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर दैट आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, helping plants and animals to survive and thrive. So, let us enhance our learning. अपनी learning को हम एक बारी फिर से enhance करते हैं. Here are two types of seed. यहाँ पर दो तरह के seeds हैं. What differences do you find? आपको क्या difference लगता है among the roots and leaf venation of their plants? इनकी roots और leaf venation में. Now, name of some animals are given below. नीचे कुछ animals के आपको यहाँ पर नाम दिए हुए हैं. Horse, dolphin, frog, sheep, crocodile, squirrel, whale, earthworm, pigeon and tortoise. Right? So, group them. आपको इन्हें group करना है based on their habitats. इनके habitats के base पर. Right? Terrestrial हैं, aquatic हैं. Write the names of aquatic animals in the area marked A. यहाँ पर आपने aquatic animals के नेम लिखने हैं और यहाँ पर आपने terrestrial animals के नेम लिखने हैं. Okay, so enter the names of animals living in both habitats. जो दोनों में रहते हैं उनको यहाँ पर आपने C section में लिखना है. So please do this activity. आपको यहाँ पर animals के नाम दिए हुए हैं. Now, Manu's mother, मनु की जो मम्मी है, maintains a kitchen garden. वो एक kitchen garden को maintain करती हैं. One day, एक दिन, she was digging out radish. वो मूली निकाल रही थी from the soil. मिट्टी में से, नीचे जमीन में से. She told मनु, उन्होंने मनु को बताया that radish is a kind of root. कि radish जो है वो एक तरह की जड़ है, root है. Examine a radish. एक आप radish को examine करो and write और लिखो. What type of root it is? ये किस तरह की root है? Is it a tap root or fibrous root? What type of venation would you observe? किस type का venation आप observe करते हो in the leaves of radish plant? ठीक है बच्चों? Now look at the image of a mountain goat and a goat found in the plains. ठीक है? ये mountain में रहने वाली goat है और ये plains में रहने वाली. Point out the similarities. Similarities को point out करें and differences को between them. और इनके बीच में differences को भी. What are the reasons for these differences? इन differences के reasons क्या है? आप देख सकते हो कि ये जो माउंटेन गोट है बच्चों, ये कितने सारी इसका स्ट्रक्चर कितना हेयरी है, कितने सारे बाल हैं जो कि इसे हेल्प करता है माउंटेन में सरवाइव करने के लिए. राइट? सो आप भी कोशिश कीजिए, कुछ सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी और कुछ डिफरेंसेस भी आपको जरूर मिलेंगे. नाउ ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स. इन एनिमल्स को आपने दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ये है काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश, ग्रास होपर एंड लिजर्ड. और क्या करना है? बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर. जो भी हमने चैप्टर्स में फीचर्स अभी डिस्कस किए उनके बेस पर आप इन्हें डिस्कस कीजिए. एज द पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइफ्स, और लोग बहुत ज्यादा और ज्यादा आरामदायक जीवन चाहते हैं. फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन, जंगल काटे जा रहे हैं टू मीट वेरियस नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए. हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग्स, ये हमारी सराउंडिंग्स को कैसे अफेक्ट कर सकता है. हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, और हम इस चैलेंज को कैसे एड्रेस कर सकते हैं. ये हमारे लिए एक चैलेंज ही है बच्चों कि जैसे जैसे जंगल काटे जा रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की हैबिटेट्स खत्म होती जा रही हैं. तो हमें अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना होगा, हमें उन्हें कंजर्व करना होगा, हमें
फिर से बोल रही हूँ। तो बच्चों, हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना होगा, हमें उन्हें कटने से रोकना होगा, अपनी जरूरतों को सीमित करके हमें प्लांट्स को, एनिमल्स को बचाना होगा, और इसी तरह से शायद हम सरवाइव कर सकेंगे और हमारी जो डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड की वो भी सरवाइव कर सकेगी। नाउ चिल्ड्रन, एनालाइज द फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को आप एनालाइज कीजिए। व्हाट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी? प्लांट, yes. Does it have leaves? Yes. Does it have reticulate venation? No. Yes. तो आपको क्या करना है, आप किसी भी प्लांट को ले सकते हैं और इस फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। नाउ राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड। राज अपने फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट करता है संजय से दैट गुड़हल, हिबिस्कस प्लांट इज अ श्रब, ये एक श्रब है। What questions can Sanjay ask for clarification? So संजय इस क्लेरिफिकेशन के लिए कि हिबिस्कस एक श्रब है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है? उसकी रूट के बारे में, उसके वेनेशन के बारे में, राइट? सो इस तरह के क्वेश्चन संजय पूछ सकता है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, इस टेबल की इंफॉर्मेशन के बेस पर बच्चों फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप्स। हर ग्रुप में इन प्लांट्स को आप इनके एग्जाम्पल्स को फाइंड आउट कीजिए। ग्रुप ए इज डाइकॉट और टैपरूट है, यहां पर आप एक एग्जाम्पल लिखिए। ये मोनोकॉट है, सीड इसका, और फिब्रस रूट है। सो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है। एंड व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव? ग्रुप ए में जो प्लांट्स आप लिखेंगे उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, और ग्रुप बी में जो आप प्लांट्स लिखेंगे उनमें क्या क्या दूसरी सिमिलैरिटीज होती हैं इनके अलावा, राइट? रूट और टाइप ऑफ सीड के अलावा। So please do this activity so that you can know that how diversity makes our living world beautiful. इसका एंड फिर से कर रही हूँ। So children, please complete this table and give the answer of these questions. So you will find that how diversity makes this world beautiful. Now, observe the label part of a duck. आप इस डक के लेबल पार्ट, आपको दिख रहा है ये वेब फीट इन द पिक्चर गिवन बिलो, जो कि यहाँ नीचे दिया हुआ है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक compared to the other birds? Which activity would the duck be able to perform using this part? So इस part को use करके, webbed feet को use करके duck कौन सी activity perform कर सकते हैं? So learning further is here. What you need to do, children, read about one Indian scientist or a wildlife biologist who is working towards protection of India's biodiversity, जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट, आपको एक ब्रीफ रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। एंड एक्सप्लोर द कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपको उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लोर करना है ऑफ दिव्या, मुदप्पा, उषा, लाचुंगपा, गजाला, शहाबुद्दीन एंड नंदिनी वेल्हो, विद्या, अत्रिया, उमा रामाकृष्णन एंड दिव्या कर्नाड टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। आपने इन सभी के कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लोर करना है एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय एनी थ्री ऑफ देम। और इनमें से किसी भी, आप कोई भी तीन व्यक्ति ले सकते हैं और उनके बारे में आपने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। लेबल द प्लांट्स, आपने प्लांट्स को लेबल करना है अपने स्कूल में विद देयर लोकल नेम्स के साथ। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड द गार्डनर, लिस्ट देम इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में उन्हें लिस्ट आउट भी आप करेंगे। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी टीचर की हेल्प से प्लान अ फील्ड विजिट, आप किसी खेतों में जाइए विजिट करने, और अ नेचर वॉक। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड कीजिए। प्रिपेयर अ क्लास बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बाय कंसोलिडेटिंग द ऑब्जर्वेशन एंड नोट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, और सभी स्टूडेंट्स के नोट्स आप उसमें लीजिए, टेकन ड्यूरिंग द फील्ड विजिट्स और नेचर वॉक। फाइंड आउट अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पता लगाइए एंड अदर सिमिलर प्रोजेक्ट्स
जो कि इंडिया में इनिशिएट हुए, किस लिए? टू प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी। प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन फॉर योर क्लास। आप अपनी क्लास के लिए एक बहुत अच्छी सी फिर से बोल रहे हो, आप अपनी क्लास के लिए एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। डिवाइड योर क्लास। अपनी क्लास को डिवाइड कीजिए इनटू ग्रुप्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ईच, 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में। इनिशिएट अ डिस्कशन इन द क्लास। क्लास में एक डिस्कशन स्टार्ट करो ऑन हाउ यू कैन प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू, कि आप लोग क्या कर सकते हो अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रिपेयर अ ग्रुप वाइज रिपोर्ट। एक ग्रुप वाइज रिपोर्ट प्रिपेयर करिए दैट इंक्लूड सजेशंस, जिसमें आपके दिए हुए सजेशंस हो गिवन बाय मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप। इंटरेक्ट विद एल्डर्स इन योर फैमिली। अपनी फैमिली में बड़ों से बात कीजिए, नेबरहुड में बात कीजिए टू फाइंड आउट वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट दे सी नाउ बट वर नॉट सीन अर्लियर एंड वाइस वर्सा। जो वो अब देखते हैं और उन्हें पहले नहीं दिखाई देते थे, उन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात कीजिए अपने बड़ों से, अपने पड़ोसियों से, या फिर जो वो पहले देखते थे और उन्हें अब दिखाई नहीं देते। नाउ कलेक्ट पिक्चर ऑफ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स को आप कलेक्ट कीजिए एंड पेस्ट देम इन अ स्क्रैप बुक, और इन्हें एक स्क्रैप बुक में पेस्ट कीजिए। फाइंड आउट मोर अबाउट देम फ्रॉम योर टीचर, और अपनी टीचर से इनके बारे में और ज्यादा पता लगाइए, जानिए। So children, stay tuned, have questions, feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Now please share, like and subscribe EduVibe, the vibe of smart education.